Moving ahead, प्यारे बच्चों. Now today we will start from question number 2.27. Now the question is, if the solubility product of copper sulfide solubility product of copper sulfide is 6 into 10 raised to power minus 16, then calculate the maximum molarity of copper sulfide. Of CuS in aqueous solution. Now copper sulfide on dissociation gives copper ions and sulfide ions. Okay. So therefore let the solubility be S of copper ions and S sulfide ions also S. Therefore what is the solubility product? KSP is equal to S square. Okay. And when KSP is equal to S square, तो SP किसके इक्वल आ गया? SP is equal to KSP is equal to S square. Therefore S is equal to KSP whole root. Okay. Now S, देखो S we have to calculate और KSP की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल गिवन है? 6 into 10 raised to power minus 16. So therefore S is equal to 6 into 10 raised to power minus 16 का whole root. Okay. और minus 16 का रूट तो आ जाएगा 6 into 10 raised to power minus 8. Okay. मतलब 10 raised to power minus 8. अब रूट 6 जो है that will be approximately equal to 2.5 के आसपास, that is 2.45 into 10 raised to power minus 8. So this will be the molarity, because the maximum जो solubility है in aqueous solution, that is the molarity. Okay, so S is equal to 2.45 into 10 raised to power minus 8, okay, m. So this is the highest molarity what it has been asked in the question. So maximum molarity of copper sulfide will be equal to 2.45 into 10 raised to power minus 8 mole per liter. Now question number 2.28, and the question is, calculate the mass percentage of aspirin. Calculate the mass percentage of aspirin C9H8O4. Okay. In acetonitrile Ca3CN acetonitrile, okay, when 6.5 gram of aspirin is dissolved in 450 gram of acetonitrile. देखो इस क्वेश्चन में एसिटोनाइट्राइल जो है दैट इज़ अ सॉल्वेंट, ओके, और सल्यूट है एस्प्रिन, एंड वी नो दैट मास परसेंटेज W/W वो क्या होता है? मास ऑफ द सॉल्यूट. देखो दिस इज़ द मास परसेंटेज, W/W% क्या होता है? दैट इज़ इक्वल टू XA डिवाइडेड बाय XA प्लस XB. ओके, यहाँ पे XA क्या है? मास ऑफ द सॉल्यूट. ओके,
और divided by the mass of solute plus mass of solvent into 100. So that is equal to 6.5 gram divided by 6.5 plus 450 into 100. Okay, so that comes out to be 6.5 divided by 456.5 into 100. Okay, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेट 1.4%. क्या आप इसको काट के देखो, देखो डेसिमल से डेसिमल गया. Okay, 5 से करोगे तो 5 13 जार, 5 9 जार 45, 5 1 जार 1, 5 3 जार, तो 1300 by 913, तो अप्रॉक्सीमेट 1.4%. So this should be the answer of this question, 1.4%. Now we move to question number 2.29. The 2.29 question is nalorphine similar to morphine. Okay, nalorphine नार्कोटिक ड्रग है. ओके, नलॉर्फिन C19H21 NO3 similar to morphine. Is used to combat withdrawal symptoms in narcotic users. Okay, चलो we are not related with narcotic, similar to morphine. Is given, next line से मैं लिखती हूँ, is given (1.5 mg). Okay, जो हमें क्वेश्चन से रिलेटेड है, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दैट. ओके, कैलकुलेट द मास (1.5 to 1.5 into 10⁻³ स्मॉल m, मतलब मोलल सॉल्यूशन है ये. स्मॉल m का क्या मतलब कि इट इज़ अ मोलैलिटी के गिवन. तो मोलल सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज, मोलल एक्वस सॉल्यूशन. required for above dose. Okay, now we know molality किसके इक्वल है. molality is equal to mass upon mass of solute upon the mass of solvent. Okay, mass of मतलब solute मतलब moles of, number of moles of solute divided by मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. तो क्योंकि क्वेश्चन में हमें ग्राम्स में गिवन है, इन ग्राम इंटू 1000. ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मास हमें कैलकुलेट करना है. वी हैव टू कैलकुलेट द मास. ओके, और यहाँ से हमें मास हमें दिया हुआ है, देखो उसने दिया हुआ है कि 1.3, इट मीन्स कि 1.5 इंटू 10⁻³ जो मोल्स हैं वो 1 kg में है. ठीक है, इसका ये मीनिंग है. तो हम पहले नैलोफ्रीन का मॉलिकुलर मास निकाल लेते हैं. क्या मोलर मास, तो मोलर मास जो है सॉल्यूट C19H21 NO3. ओके, तो 12 इंटू 19 प्लस 1 इंटू 21 प्लस 14 और प्लस 3 इंटू 16. तो आप सबको मल्टीप्लाई करके और कैलकुलेट करो तो इट विल कम आउट टू बी 311. ओके,
अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नैलोरफिन कितने हो जाएंगे? दैट विल बी इक्वल टू मास 1.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, ओके, ये मास हमारे पास कहाँ से आया? 1.5 इंटू 10⁻³ ओके, ये एक्चुअली 1.5 इंटू नहीं है, देखो ये हमें क्योंकि 15 mg 1.5 mg है क्वेश्चन में, ओके, तो ये 1.5 mg को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ओके, तो 1.5 इंटू 10⁻³ ये ग्राम हो गया और डिवाइडेड बाय 311 के मोलर मास। तो दिस वैल्यू इज़ नॉट दिस, ये नहीं है, ये वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻³ मास को कन्वर्ट किया, ओके, mg को ग्राम में। तो दैट इज़ बाई चांस दोनों वैल्यू सेम है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। तो यहाँ से आ गया 4.82 इंटू 10⁻6 मोल्स, ओके, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका। तो दैट इज़ तो 1 मोल। नाउ वी हैव टू डू द मोलैलिटी इज़ गिवन है, मास ऑफ वाटर हमें कैलकुलेट करना है। तो मोलैलिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है। तो नाउ दिस इक्वेशन में लगाओ, मोलैलिटी कितनी है? 1.5 इंटू 10⁻³ इज़ इक्वल टू, ओके, 1.5 इंटू 10⁻³ या यही रहने देते हैं हम, डिवाइडेड बाय 311 करने की ज़रूरत भी नहीं थी, इंटू WB, WB कर लेते हैं, और इंटू 1000, ओके, इंटू 1000। तो यहाँ से WB की वैल्यू कितनी आ गई? WB इज़ इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 311। तो आप इसको अब डिवाइड करोगे तो दैट विल कम आउट टू 3 3s आर अप्रॉक्सीमेट 3.2 ग्राम। So this is the answer of the mass of the solvent, okay, 3.2 gram। Okay. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3.30 2.30, क्वेश्चन नंबर 2.30, calculate the amount of benzoic acid amount of C6H5COOH, okay, this is benzoic acid, benzene ring पे carboxylic group है, okay, required for preparing 250 ml of 0.15 molar, okay, molarity is given now, solution in methanol। अगर स्मॉल m है तो इसका मतलब मोलैलिटी है, कैपिटल M है तो इट मीन्स इट इज़ मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? देखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट WB डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, ओके, इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V इन लीटर, ओके। तो WB कितना है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ दैट वी हैव टू कैलकुलेट WB, ओके। और यहाँ से मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, ट्वेल्व इंटू 6 72 प्लस 5 प्लस 12
plus 16 into 2 32 plus 1. Okay, 18 plus 32, तो 122 आ गया. तो दिस इज़ अ मोलर मास. तो जब ये मोलर मास है 122, ओके, यहाँ से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स W हमें कैलकुलेट करना, वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ना. तो WB डिवाइडेड बाय 122 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 250. और ये किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज़ इक्वल टू 0.15. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 0.15 इंटू 122 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू WB. ठीक है, तो डेसिमल ये हटा देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करो. तो 5 3s आर 5 2s आर, और 2 जो है 61. इसको रहने देते हैं क्योंकि 1000 से इट वुड बी ईजी फॉर अस टू. या अगर करना है आपने तो 40 पे चला जाएगा, तो और होगा नहीं. चलो 3 183 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1000. तो 25 3s आर 75, 7 200 207 20 45. So that comes out to be 457.5. इसमें आ रहा है लीटर्स में. मास नहीं, मास जो है हमारा इसमें आ रहा है ये 0.15 मोलैरिटी WB बाई दिस 1000. और क्वेश्चन में 250 क्या गिवन है? 250 ml ही है. तो दैट इज़ 4.575. ओके, तो ये आंसर आ गया 575 ग्राम. ओके, सो दिस इज आंसर. तो अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड इज 4.575 ग्राम. नाउ क्वेश्चन नंबर 2.31 नाउ. में the depression in the freezing point of water for the same amount of acetic acid. थ्योरी का क्वेश्चन है. फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड मीन्स CH3COOH ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड क्या फॉर्मूला हो गया? CCl3COOH. okay, and trifluoroacetic acid. So trifluoroacetic acid means CF3COOH. Increase in the order given above. एक्सप्लेन. तो इंक्रीज इन द ऑर्डर मीन्स कि क्या मतलब है इसका? कि जो एसिटिक एसिड है उसकी जो डेल्टा TF की वैल्यू है, क्या डेल्टा TF एसिटिक एसिड की सबसे कम है, फिर है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की, और लास्ट में है मतलब हाईएस्ट है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड की. ओके, दिस ही हैज आस्क्ड यू टू एक्सप्लेन दिस कि व्हाई दिस इज सो. नाउ वी नो कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ओके,
उतनी ही उसकी आयनाइजेशन, डिग्री आयनाइजेशन है, दैट विल बी कैन बी मोर। ओके, अब इसमें आप सब में देखो CF3, ओके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है आपका, एंड दैट इज ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है? फ्लोरीन। ओके, अब यहाँ पे फ्लोरीन है CF3। ओके, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है उतनी उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ओके, अब फ्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो इसका मतलब ये माइनस आई इफेक्ट दे रहा है, तो इट विल मेक द एसिड वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, देन दिस ऑल्सो इज गिविंग माइनस आई बट लेसर देन फ्लोरीन, और CI3 प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, तो दिस इज मेकिंग द वीक एसिड। ओके, तो इसलिए इस केस में जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, दैट इज़ आयनाइजेशन कांस्टेंट, वो किस पे डिपेंड करता है? दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, मतलब मोर द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड मोर द आयनाइजेशन कांस्टेंट, मोर द strength of the acid more the ionization constant. के उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन कांस्टेंट होगी। और आयनाइजेशन कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखो, जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है डेल्टा TF किसके इक्वल है? डेल्टा TF जो है दैट इज़ इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, ओके, इंटू मोलैलिटी, और I दैट इज़ वैंट ऑफ फैक्टर। वैंट ऑफ फैक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन कांस्टेंट, और यहाँ पर I क्या है? दैट इज़ द वैंट ऑफ फैक्टर। ओके, और जितनी I की वैल्यू इंक्रीज होगी उतनी डेल्टा TF की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ओके, और I की वैल्यू आयनाइजेशन कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट इन तीनों एसिड में हाईएस्ट है फॉर CF3COH, ओके, फॉलोड बाय CCl3COH एंड देन CI3COH। Okay, so since the degree of ionization is greater for this, okay, तो degree of ionization means कि अल्फ़ा, देखो I किसके इक्वल होता है? I जो है we know that I is equal to 1 plus अल्फ़ा। okay, तो जितना ज़्यादा अल्फ़ा होगा, okay, उतनी I की वैल्यू बढ़ेगी। okay, और degree of dissociation, degree of ionization, and degree of ionization depend how strong the acid is। okay, so this acid is very strong followed by this, so that's why the more the ionization, and I is directly proportional to ionization constant, hence delta TF will be highest for CF3COH. Okay, out of the three acids, strength of the acids is in the order of CF3COH greater than CCl3COH, okay, or greater than CI3COH। okay, ये माइनस आई इफेक्ट दे रहा है, ये भी माइनस आई है, और दिस इज प्लस आई, बट CF3 का माइनस आई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CCl3। okay, so this was the theory based question number 3.30, okay, 3.31 sorry। okay, and now we move to 3.32, next question पे चलते हैं, question number 3.32। now calculate the depression in the freezing point
in freezing point of water when 10 gram of Ca3CH2 CH ClCOOH, this is chlorobutanoic acid है, okay, is added to 250 gram of water. Okay, chlorobutanoic acid Ka की वैल्यू दी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, okay, 1.4 into 10 raised to power minus 3 and Kf डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट है ये, तो 1.86 केल्विन kg पर मोल. Now this is given. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि हमें अब क्या चाहिए. देखो अब यहाँ पर एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि एसिड है तो एसिड रेडिली डिसोसिएट्स, तो इसमें ये एसिड जो है इस तरह से डिसोसिएट करेगा, Ca3CH2 CHCl COOH, तो व्हेन इट विल डिसोसिएट, तो इट विल डिसोसिएट टू गिव राइज टू Ca3CH2 CHCl COO नेगेटिव आयन plus H positive ion. Okay, so it means the acid will dissociate like this. तो जब acid dissociate कर रहा है तो number of जो moles हैं they are increasing. Okay, तो colligative property के बेस पे क्वेश्चन है, एंड colligative property जो है चेंज होती है when the number of moles increase. Okay, so therefore we will take care, now we will consider I also, Van't Hoff factor. तो जो फॉर्मूला अब हम लगाएंगे वो लगाएंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू I into Kf into मोलैलिटी, okay, into m. अब I को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव बिन गिवन Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें दिया हुआ है. ओके, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की हेल्प से अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें और अल्फ़ा से फिर हम I को कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो फर्स्ट लेट मी क्या नाम है दिस कैलकुलेट मोलैलिटी. पहले मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर I का देखते हैं. अब मोलैलिटी देखो, मोलैलिटी जो है दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट. नंबर ऑफ मतलब मोल्स मीन 10 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास. अब मोलर मास कैलकुलेट करो. ओके, 12 प्लस 3 और 2 5, चलो ठहरो, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो 1 2 3 4, क्या 48 तो कार्बन के हो गए, प्लस 6 हाइड्रोजन 6, okay, 2 ऑक्सीजन 32 और 1 क्लोरीन 35.5. okay, तो 0.5 तो इधर ही आ गया, 7 6 13 और 8 21 2 5 8 121.5. okay, so this is the 6 हाइड्रोजन कहाँ गए, मैंने हाइड्रोजन लिए ही नहीं, 3 2 5 और 1 6 ले लिए. कार्बन 48, सॉरी 1H1, दिस H इज ऑल्सो, ओके, क्योंकि हम एसिड का निकाल रहे हैं, तो 122.5. ओके, तो 122.5. तो अब मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 122.5 इंटू 1000 अपॉन 250. ओके, ये आ गई, तो इंटू 1000 अपॉन 250, तो दैट इज़ कितने आ गए यहाँ से, 254 ज़ार, ये डेसिमल हटा दें तो 100, तो 520 ज़ार 10 20, फिर 5 पे चला जाएगा, 5 4 ज़ार,
तो 16/49, तो दैट इज इक्वल टू डेसिमल 3, डेसिमल 3 अप्रॉक्सीमेट 33, ओके, तो 0.33 m आ गया अप्रॉक्सीमेट। अब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पे वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा। ओके, अब देखो ये है Ci3 CH2 CH ClCOH and it gives rises to Ci3 CH2 CHCl COO negative plus H positive। अब लेट देखो, हम ये सपोज करके चलते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई, ओके, तो व्हेन T इज इक्वल टू 0, तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वाज C। ओके, तो इसकी 0 क्योंकि रिएक्शन हैज़ जस्ट T 0 है। ओके, अब लेट अल्फा बी द डिसोसिएटेड। अगर 1 मोल है और उसमें से अल्फा डिसोसिएट हुआ है, ओके, तो C मोल है तो C अल्फा डिसोसिएट हुआ है। ओके, तो व्हेन T इक्विलिब्रियम पे, अब T इक्विलिब्रियम पे हम क्या लेते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट। ओके, तो C अल्फा जब इसमें से डिसोसिएट हो गया तो इसका मतलब हाउ मच इज लेफ्ट, C माइनस C अल्फा। ओके, तो C अल्फा हैज़ बीन डिसोसिएटेड, C इनिशियल कंसंट्रेशन थी, तो C माइनस C अल्फा, और बने कितने हैं C अल्फा C अल्फा। ओके, दीज हैव बीन फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम। ओके, अब लेट इट बी Ka किसके होता है, Ka इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द products raised to power, the product of the molar concentration of the products raised to power of its stoichiometric coefficient। okay, तो Ka किसके इक्वल आ गया, that is Ca3 CH2 CHCl COO नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंटू HIN की कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय CH3 CH2 CHCl COOH की कंसंट्रेशन। ओके, तो दैट इज इक्वल टू, दोनों वैल्यू पुट करो, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा, तो C से C गया, तो दैट इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सिंस अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, देयरफॉर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। ओके, तो Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। ओके, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा इज इक्वल टू Ka डिवाइडेड बाय C होल रूट। ओके, तो Ka बाय C डिवाइड में Ka बाय C और होल रूट। ओके, तो यहाँ से अब हम इसको देखते हैं, तो कितना आ गया, तो 16/49 था C की वैल्यू, और Ka की वैल्यू क्या गिवन है, Ka की वैल्यू गिवन है 1.4 इंटू 10⁻⁻13। ओके, ये 16/49 ही ले लेती हूँ कि इट विल बी ईजी फॉर कैलकुलेटिंग द रूट। ओके, तो ये आ गया -3, माइनस कितनी है 13 है, 1.4 इंटू 10⁻⁻3 है। अच्छे मिनट, ओके, इट इज -3। तो अल्फा इज इक्वल टू 49 का रूट तो 7 आ गया और 16 का आ गया 4। ओके, इंटू इसको हम ले लेते हैं 14 इंटू 10⁻⁻4। ओके, तो आ गया 7/4 इंटू 10⁻⁻2 रूट 40। ओके, तो ये आ गया, तो रूट 14 जो है अप्रॉक्सीमेट 3.74 आएगा आपका, तो ये आ जाएगा 7.4 इंटू 3.74 इंटू 10⁻²। ओके, तो आप इसको सारे को सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी, सॉल्व इट, तो इट विल कम आउट टू बी 0.0645, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा। ओके,
अब आई वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 आइंस में डिसोसिएट हुआ है तो 2 आइंस में 2 माइनस 1, ओके, तो 1 आ गया, तो 1 प्लस एल्फ़ा, तो इट विल बी 1 प्लस 0.0645, ओके, तो दैट इज़ इक्वल टू 645 या 65 ही ले लेते हैं, लेट इट बी, तो 1.065, ओके, सो दिस इज़ अवर आई की वैल्यू आ गई। अब व्हेन वी नो द आई, अब आगे इट्स इजी फॉर कैलकुलेशन। अब तो क्या बचा हमारा, आई आने के बाद डेल्टा टी एफ किसके इक्वल है? दैट इज़ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, ओके, आई की वैल्यू 1.065, के एफ की वैल्यू गिवन है हमें 1.86, ओके, इंटू, और वो हमने कितना निकाला था, 0.33, okay, so then multiply all this, so that will come out to be 0.6465, okay, डिग्री। डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ रही है ये, तो 0.65 डिग्री, okay, so this is the answer, okay, तो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट कि हमें किस तरह से उसको सॉल्व करना है, तो then you do it, don't forget to put I in this question, okay, so till now we have finished the exercise up till 3.32, okay, so for today it is all for today, and in the next video then I'll give more questions, okay, rest of the questions we'll try to finish now, okay, it's okay for today, bye.